بچھائے اور دعا مانگے، اس کو کھانا نہ ملے، اس کو یاد نہ رہا۔ ماں محلے میں چلی گئی اور بچہ گھر آ گیا۔ بچہ گھر آیا، بچے کا جو معمول تھا اس نے وضو کیا، مصلی بچھایا اور دعا مانگنے لگا۔ ادھر ماں کو خیال آیا میرا بچہ مدرسے سے آیا ہوگا، آج وہ دعا مانگے گا، اس کو کھانا نہیں ملے گا اور اس کا اللہ سے بھروسہ اٹھ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو۔ ماں کے دل میں یہ خیال آیا اور وہاں سے دوڑی دوڑی چلی آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے کو کھانا نہ ملے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے بھروسہ نہ اٹھ جائے۔ وہ آئی اور آ کر کے دیکھا بچہ سویا ہوا ہے۔ ماں کے دل میں خیال آ رہا ہے بچہ آج یہ سوچ رہا ہوگا اللہ مجھے روزانہ کھانا کھلاتا تھا، روزانہ مجھے اچھا کھانا ملتا تھا، آج میں نے دعا مانگی، میں نے مصلی بچھایا، میں نے وضو کی، آج مجھے کھانا نہیں ملا۔ اور ماں کے دل میں خیال آ رہا ہے، دعا کر رہی ہے اے اللہ تیرے بھروسے پر بچے کو چھوڑا ہے، اے اللہ تیرا ہمیشہ تیرا سہارا رہا ہے، اے اللہ میرے بچے کو مایوس نہ کرنا۔ دعا بھی کرتی جاتی ہے اور ماں گھر میں آتی ہے اور آ کر کے دیکھا کہ بچہ سویا ہوا ہے۔ ماں نے کھانا بنایا جلدی جلدی سے اور اس طاق میں رکھا، بچے کو اٹھایا، بیٹا اٹھو اللہ سے مانگو، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ بچہ کہتا ماں میں نے تو وہی کام کیا، میں روزانہ آتا، جیسا روزانہ میں کام کرتا ہوں، میں نے تو کھانا جو ہے مصلی بچھایا، اللہ سے دعا مانگی اے اللہ مجھے کھانا کھلا دے۔ میں نے کھانے کے لیے جب دعا مانگی تو مجھے اس طاق میں سے خوشبو آئی اور میں نے طاق کھول کر کے دیکھا مجھے اس میں کھانا مل گیا، میں نے کھانا کھا لیا ہے اماں اور بہت اچھا کھانا مجھے آج ملا ہے۔ تو ماں نے سجدہ شکر ادا کیا، اے اللہ تو نے میرے بچے کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ میرے بھائیوں تو ماں سمجھ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کے لیے جنت سے کھانا بھیجا، اللہ نے میری اور جو ہے لاج رکھی، اپنے نام کی راج رکھی۔ تو بچہ تھا اس کو نہیں پتا تھا کھانا کون دیتا ہے، کھانا کہاں سے آتا ہے، وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اللہ پاک کھلا رہا ہے۔ تو ماں نیک تھی، بچے کی تربیت نیکی کے ساتھ کر دی۔ میرے بھائیوں آپ نے اگر ہمارے معاشرے میں ہماری مائیں بہنیں اس طریقے سے اولاد کی تربیت کریں گی تو وہ کیسے کر پائیں گی؟ جب ان کے اندر دینداری ہوگی، جب وہ پڑھی لکھی ہوگی، جب ان کے اندر دین کی سمجھ ہوگی تو میرے بھائیوں تبھی جا کر کے وہ کہیں اپنے اولاد کی اس طرح تربیت کر پائے گی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بچپن ہے، ماں سے کہہ رہے ہیں مجھے بچپن میں مجھے شوق لگا ہے، مجھے پڑھنے جانا ہے، مجھے بغداد سے کہیں عراق میں جانا ہے کہ قافلے، پہلے گاڑیاں تو نہیں ہوا کرتی تھی، ریل گاڑی تو نہیں چلتی تھی، بس قافلے بنا کر کے لوگ پیدل جایا کرتے تھے۔ تو ماں سے کہہ رہے ہیں اماں مجھے پڑھنے کے لیے مدرسے میں جانا ہے، مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا جاؤ، ایک قافلہ جا رہا ہے اس کے ساتھ تمہیں جانا ہے، مدرسے میں داخل ہو کر کے تمہیں علم دین حاصل کرنا ہے، لیکن بیٹا کبھی مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان وہ ہوتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ تم سچ بولنا، سچائی کا ساتھ دینا، سچ ہمیشہ انسان کو نجات دلاتا ہے۔ ماں نصیحت کر رہی ہے اور اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے بیٹا تم مدرسے میں جاؤ گے تو کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آج ماں بچوں کو سکھاتی ہے، بچے جھوٹ بولنا سیکھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ابا کوئی ماں نے غلطی کر دی ہے اور بچے نے دیکھ لیا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا اپنے بچے اپنے ابا کو مت بتانا۔ آج حال عجیب ہو گیا ہے، ماں دینداری نہیں ہے تو بچوں کو بے دینی سکھائی جا رہی ہے، اگر دین گھر میں ہوگا تو بچوں کو دینداری سکھائی جاتی ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ نے واقعہ بچپن میں بھی کتابوں میں پڑھا ہوگا، بارہا آپ نے سنا ہوگا، ماں نے نصیحت کی ہے، بچے کو قافلے کے ساتھ کر دیا ہے۔ اور اس وقت میں جو سونے کی اشرفیاں ہوتی تھیں، آج کے دور میں تو لاکھوں روپیہ بیٹھتا ہے، آپ اندازہ کر لیجئے۔ تو ماں نے سونے کی اشرفیوں کو اشکن میں سی دیا اور یہ کہا بیٹا جب تمہیں ضرورت پڑے اشرفیاں نکالتے رہنا اور خرچے میں لاتے رہنا، مگر یاد رہے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ قافلہ ماں نے بچے کو قافلے کے ساتھ کر دیا ہے، بچہ قافلے کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب راستے میں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، ڈاکو راستے میں قافلے کو لوٹنے آتے ہیں، سب کا مال چوری جو ہے لوٹ لیا جاتا ہے۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر 8-9 سال ہے، وہ زیادہ سنجیدہ بھی نہیں ہے۔ ایک چور نے اس سے پوچھا، ایک ڈاکو نے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں تو قافلے میں
पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। कहा क्या करोगे पढ़ करके? कि मेरी माँ ने मुझे कहा पढ़ लिख करके इंसान अच्छा बन जाता है, मैं एक आलिम बनूंगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा। कहा तुम वहां जा करके खर्चा कैसे करोगे? कहा मेरी माँ ने मुझे पैसे दिए हैं। कहा कहाँ है वो पैसे? कि मेरी अस्कन में है, ये देखो। चोर को दिखाया कि मेरे पास 40 रुपया है, मैं उनसे अपना खर्चा करूंगा। चोर को ताज्जुब हुआ। डाकू ने सोचा ये छोटा सा बच्चा, इसके पास सोने की 80 रुपया कहाँ से आई होंगी। उसको पकड़ करके अपने सरदार के पास ले गया। सरदार के पास जा करके कहा कि साहब देखो ये छोटा सा बच्चा अपने पास 40 रुपया कहता है सोने की, मेरे पास तो 40 रुपया है, जरा इससे पूछो कहाँ से आई है। तो उसने पूछा, सरदार ने, बेटा ये सोने के रुपया तेरे पास कहाँ से आई है? उसने कहा मेरी माँ ने दी है, और मेरी माँ ने ये भी बताया कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैंने बताया मेरे पास 40 रुपया है। डाकू का सरदार रोने लगा और कहने लगा कि छोटा सा बच्चा है, अपनी माँ का कितना कहना मानता है, और आज हम अल्लाह के बंदे हैं, न जाने कितने मखलूक को सताते हैं, हम रोजाना झूठ बोलने पर तुले हैं, ये छोटा सा बच्चा सच्चा मुसलमान है। तो उसने क्या किया, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, और जितना माल उसने लूटा था सब का सब वापस कर दिया। बच्चे के हाथ पर तौबा की और ये कहा कि मैं आज के बाद डाका नहीं डालूंगा, ये छोटा सा बच्चा है, इसके हाथ पर मैं तौबा करता हूँ। तो माँ की तरबियत थी, बच्चे ने सच बोला, डाकुओं ने सारा माल वापस कर दिया, काफिले वालों को माल भी मिल गया, और काफिले वालों के जो चोरों ने, डाकुओं ने जो है डाका डाला था वो ताइब भी हो गए, तौबा भी कर ली, और हजरत का माल भी बच गया। मेरे भाइयों एक सच था कि जो नजात दिलाया, और सच की वजह से वो नजात जो है उसको मिली। कहाँ से ये तरबियत मिली? माँ ने उनको तरबियत दी थी कि बच्चे अगर माँ सही नियत सच्ची हो, माँ अगर तरबियत याफ्ता हो, माँ अगर दीनदार हो, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है, अच्छाई की तरफ उसको लेकर के जाती है, तो वो बड़ा होकर के बच्चा कौन बना? उस बच्चे का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से आज हम लोग जानते हैं। तो माँ ने तरबियत फरमाई। तो मेरे भाइयों जब माँ अच्छी तरीके से तरबियत करती है तो मेरे भाइयों बच्चे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला दीनदारी पैदा करते हैं। आपने टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा, जब वो अपने बाप हैदर अली के साथ में शिकार करने के लिए जाते हैं, और रास्ते में उनको जंगल में जाकर के शिकार, जो शेर का शिकार करते हैं, माँ बाप तो बहादुर था ही, बेटा भी बड़ा बहादुर था, बेटे ने शेर का शिकार किया है। आप जानते हैं सुल्तान टीपू को जब तक वो जिंदा रहे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का जो है छठी का दूध याद दिलाया है। हिंदुस्तान की आजादी में अगर नाम आएगा तो टीपू सुल्तान का नाम सबसे फहरिस्त आता है। मेरे भाइयों जब उनका जो शहीद हो गए तब से जो है अंग्रेज ने कहा था आज हिंदुस्तान हमारा है। इतने बहादुर थे, उनकी लाश के करीब भी अंग्रेज जाने की हिम्मत नहीं करता था, इतने बहादुर थे। उन्होंने शेर का शिकार किया, और माँ से जब हैदर अली ने, उनके वालिद ने आकर के बताया कि आज तो मेरे बेटे ने शेर का शिकार किया है, तो माँ रोने लगी। बाप ने पूछा रोने की बात नहीं है, ये तो हंसने की बात है, ये तो खुश होने की बात है, हमारा बेटा बहादुर है। फरमाया तुम नहीं जानते हो, मैं अपने बेटे का वो बचपन याद आया है। मैंने अपने बेटे को कभी किसी भी हालत में हो, मैंने कभी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया है। मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया है तो वजू करके दूध पिलाया है, तो मेरा बच्चा बहादुर कैसे ना बने। तो मेरे भाइयों ये वो माएँ थी जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की थी, वो दीनदार थे, उनके औलादों के अंदर दीन आया। किस वजह से? कि उनके अंदर दीनदारी थी। एक बादशाह, उन्हें खबर मिली है कि हमारा बेटा शिकस्त खा करके आ रहा है। रानी को खबर दी गई, रानी ने कहा, उन्होंने कहा मैं नहीं मान सकती, मेरा बेटा हार कर नहीं आ सकता है, मेरा बेटा कभी पीठ दिखा करके नहीं आएगा। तो बादशाह ने थोड़ी देर के बाद दूसरे आदमी ने खबर दी, बादशाह सलामत, आपका बेटा जंग से आ रहा है और फतहयाब होकर के आ रहा है। तो बादशाह ने रानी से पूछा तुमने इतने वसूख से कैसे कहा कि मेरा बेटा हार नहीं सकता? फरमाया मैंने कभी भी जिंदगी में अपने बेटे को बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया है। मैं समझ सकती हूँ मेरा बेटा बहादुर है, वो बुज़दिल नहीं हो सकता है, वो पीठ नहीं दिखा सकता है। मैंने कभी भी अपनी
जिंदगी में अपने बेटे को बचपन की हालत में बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया तो मेरा बेटा कमजोर, मेरा बेटा जो है बुज़दिल नहीं हो सकता है, तो मैं अपने बेटे की परवरिश को कैसे मान लूं कि मेरा बेटा हार सकता है। तो मेरे भाइयों, ये वो परवरिश थी जब माँ दीनदार होती थी तो अपने बच्चों की परवरिश दीन के मामले में करती थी। आज अगर हमारे यहाँ दीनदारी नहीं है तो बच्चों की परवरिश भी ऐसे ही हो रही है। बच्चों को झूठ बोलना सिखाया जाता है, माँ ने गलती कर दी है, बच्चे को बोला जाता है बेटा अगर बाप आए तो कह देना कि यहाँ कोई नहीं आया था। कोई बात हो जाती है तो माँ उसको सिखाती है, बेटी को सिखा रही है बेटी ऐसा मत करना, ऐसा कर लेना, तो फिर बच्चों के अंदर दीनदारी कहाँ से आएगी। मेरे भाइयों, आज जरूरत इस बात की है कि हमें मदरसों में बच्चों से ज्यादा बच्चियों की तालीम की तरफ तवज्जो की जरूरत है। अगर हमारी बच्चियां, हमारी माँ बहनों के अंदर दीन आएगा तो यकीनन हमारे माशरे के अंदर दीन आएगा। तो मेरे भाइयों, आज हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारी बच्चियां दीन से दूर और जो है कॉलेजों में, स्कूलों में जाती हैं, उनको अपने हबीब का जो है तज़किरा याद नहीं है, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत याद नहीं है, हजरत आयशा, हजरत खदीजा, हजरत मैमूना, हजरत सफिया, हजरत रुकैया, इनकी जो है उनको जिंदगी के हालात याद नहीं है, उनको दीनदारी का पता नहीं है, उनको तो हीरोइनों के नाम याद है, उनको तो क्रिकेटरों के नाम याद है, तो वो ऐसे ही गुल खिला रही हैं। न जाने कैसे कैसे लोगों से दोस्ती हो रही है। अखबारात में, खबरों में आता है फला लड़की ने फला हिंदू लड़के से शादी कर ली है, फला लड़की फला के साथ में चली गई है। क्या वजह है? वजह यही है हमने अपनी बच्चियों को दीनदारी नहीं सिखाई है, दीन की तरफ उनको रग़बत नहीं दिलाई है, दीन उनको सिखाया नहीं है, उनको आखिरत की तरफ तवज्जो नहीं दिलाई है। अगर हम यही माशरा चलता रहा तो मेरे भाइयों, एक दिन वो आएगा हम अपने घर में अपना सर पीटते रहेंगे और हमारी बच्चियां मुर्तद होती चली जाएंगी। ये जरूरत आज इस बात की है, हमें अपनी बच्चियों की तरफ दीनदारी का माहौल लेकर के चलना है, अपनी बच्चियों को दीनदारी की तरफ जो है हमें जो है झुकाना है। हमारे स्कूल होंगे, हमारे मदरसे होंगे, हमारे जो है माशरे में हमारी बच्चियां दीन की तरफ रग़बत आएंगी, रग़बत जो है उनको दिलाई जाएगी, दीनदारी उनके अंदर पैदा की जाएगी, तो फिर मेरे भाइयों हमारी माशरे के अंदर दीन का जो है बोलबाला होगा, हमारी आने वाली नस्ल दीनदार होगी। और जब माँ नहीं पढ़ी होगी, बच्चियों को हमने नहीं पढ़ाया होगा, वो शादी करके दूसरे घर में जाएगी, वो नमाज नहीं पढ़ेगी, दूसरों को देखेगी, वो दीनदार नहीं होगी, तो आगे औलाद होगी तो वो भी बेदीन होगी, फिर में हमारा माशरा खराब होता चला जाएगा। मेरे भाइयों, हमारे माशरे में आज जरूरत इस बात की है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने ये तहैया किया है कि हमारे इस गांव में, हमारे इस महल्ले में बच्चियों की तरबियत गाह हो, बच्चियों की जो है यहाँ नशिश गाह हो और बच्चियों को जो है तालीम देने का एक इदारा हो। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के इस जो है इरादे को मुकम्मल फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इस गाँव में, इस मदरसे को दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और जिन लोगों ने इसमें जो है हिस्सा लिया है और लेने वाले हैं, इरादा किया है, जो करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको जो है इसकी तरफ तवज्जो जो है करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत मुबारकबाद है आप लोग कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों को ऐसे आदमी दिए हैं जो हमारी बच्चियों की फिक्र कर रहे हैं, हमारे आने वाली नस्लों की तरफ जो है ध्यान दिया है। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को भी इखलास के साथ जो है काम करने की तौफीक अता फरमाए और मुझे भी आप हज़रात को भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।